Hello, good morning children. How are you all? Hope fit and fine. Today children, we are going to start a new chapter. Chapter 2, Economics, Chapter 2, Sectors of Indian Economy. Okay, and this is the chapter children. It's very interesting. You should know about your economy. Children, when you go around, you walk around, you see different of people engaged in different activities. These activities may be rickshaw pulling, making pottery, teaching, and working in the institutions. So all these activities are not based on the income. Some activities are done just for the sake of welfare, and the activities which are done to earn the money, those activities are called economic activities. तो चिल्ड्रन कोई भी काम करेगा, जो भी करेगा, आजकल जो भी काम करता है वो इसलिए करता है कि ही नीड्स मनी. और मनी क्यों ज़रूरत होती है बच्चों? क्योंकि we have many wants or many needs. To fulfill those needs and wants we need money. तो ये जो different activities हैं बच्चों, how you will come to know about these activities? These activities are grouped together on important criteria. These activities are grouped together to form a group on the basis of important criteria. These groups of activities are known as sectors. So here are, in our Indian economy, there are 3 sectors of Indian economy. Before going to the sectors, we can see also non-economic activities. Non-economic activities are those activities which are not done for the money. They are done for the social welfare. Like your mother teaches you, she doesn't take any money. This is a non-economic activity. Whereas a teacher teaches you, she takes salary. That is a economic activity. So in this chapter, we are going to discuss about the economic activities only. Now we come to the 3 sectors of Indian economy. 3 sectors are primary sector, secondary sector, and tertiary sector. In the primary sector, this is the basic sector. This is the sector which produce things by using the natural products. For example, cotton. We need cotton for the cloth, but the cotton is grown in the farm. That is a primary activity. This primary sector, this is primary activity or primary sector. So in this sector, this is called the, why this is called the primary sector children? It is called the primary sector. You know why? Because all the things, you see, this is sector. This is primary sector. This is called primary because it is the base of other things we make. We take example of cotton. Cotton is grown in the farm. It is an agricultural activity. Or with the use of cotton, we make other things. Like this, sugar is made from sugarcane. Where the sugarcane is grown, it is grown in the agriculture, in the farming. So this comes in the farming activities. So these are the farming activity. This primary sector is called the basic sector or agricultural and related sector also. Other name for the primary sector is agriculture and related sector. Now we come to the secondary sector. This sector, secondary sector. This sector takes raw material from the primary sector which are grown in the agriculture and makes and convert them into the useful things what we use. And the things are
raw material is taken from primary sector and it comes to the secondary sector, where manufacturing is done in the industries or at home or in the shop, and we make useful things. This is called the secondary sector because the manufacturing is done. So this sector also called manufacturing sector or industrial sector. Now we come to the tertiary sector, children. Tertiary sector. Tertiary sector. This is different from primary and secondary sector. How it is different? Because this sector does not produce goods. It only produces services. It does not produce goods, but it's a great help in producing the primary and secondary goods. It is very helpful for the primary and secondary sector. You know why? Because things produced in the secondary sector. सपोज फॉर एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल लेते हैं कि सेकेंडरी सेक्टर में कहीं पे मैन्युफैक्चरिंग हुई, शुगर केन, प्राइमरी सेक्टर से शुगर केन को ले जाना पड़ा, कहाँ ले जाना पड़ा बच्चों? सेकेंडरी सेक्टर में, इंडस्ट्रीज़ में, शुगर इंडस्ट्रीज़ में। तो ले जाने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ी? ट्रांसपोर्ट की, प्राइमरी टू सेकेंडरी सेक्टर। फिर सेकेंडरी सेक्टर से बच्चों वो शुगर बन के उसको ले जाना है होलसेल मार्केट में या रिटेल शॉप में, उसके लिए भी ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ी। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं टर्शरी सेक्टर इट डज नॉट प्रोड्यूस गुड्स बट इट प्रोवाइड्स सर्विसेज which are very important for the development of primary and secondary sector. And you know children, tertiary sector में कौन कौन सी आती हैं आपके? जैसे सर्विसेज आती हैं आपकी ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, बैंकिंग सर्विसेज एक्सेट्रा। इनके अलावा कुछ बच्चों बेसिक सर्विसेज भी हैं। बेसिक सर्विसेज में आता है जैसे टीचिंग हो गया, और आपके बेसिक सर्विसेज में आता है आपकी पर्सनल हाइजीन से रिलेटेड, बार्बर है, वॉशरमैन है, आपकी मेड है, ये सब सर्विसेज भी टर्शरी सेक्टर में आती हैं। तो टर्शरी सेक्टर जबकि प्रोड्यूस नहीं करता है थिंग्स, बट इट इज़ अ ग्रेट हेल्प फॉर द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। विदाउट द टर्शरी सेक्टर आवर इकोनॉमी कैन नॉट रन। So this was about the three sectors of the economy, Indian economy: primary, secondary and tertiary. Okay children, and now we come to the this tertiary sector is also called service sector children because it provides services. Now we come to the historical change in the sectors, यानी कि कैसे जो ये तीन सेक्टर्स में थे, इनमें लास्ट 200 ईयर्स में क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो ये चेंजेस बच्चों डिपेंड करते हैं, हिस्टोरिकल चेंजेस डिपेंड्स ऑन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट व्हाट डज इट मीन? कि जैसे जैसे डेवलपमेंट होता गया उसी हिसाब से इन सेक्टर्स में चेंज, इम्पोर्टेंस में इनके चेंज आता गया। एट द इनिशियल stage of development, in the beginning, at the initial stage of development, the primary sector was very important. Primary sector, it is related with the agriculture, and you very well know that most of at that time 65% of our generation was dependent on primary sector. So in the initial age of development, primary sector was the main important, and most of the employment was given by the primary sector only. लेकिन देखते हैं धीरे धीरे बच्चों, हम देखें कि जैसे जैसे एग्रीकल्चर में न्यू मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर, न्यू मेथड्स आने लगे, इसका क्या फ़ायदा हुआ बच्चों? कि लोगों के पास पहले क्या था? दे यूज टू डू एग्रीकल्चर फार्मिंग जस्ट फॉर देयर ओन पर्पज़, नॉट फॉर द ट्रेड, सेलिंग पर्पस नहीं था। लेकिन न्यू मेथड्स ऑफ फार्मिंग आने के साथ साथ क्या हुआ बच्चों कि प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगा।
अब जैसे जैसे ज़्यादा प्रोडक्शन होने लगा तो उसमें क्या हुआ बच्चों, लोगों के पास इनकम आने लगी। अब लोगों ने वो फार्मिंग को छोड़ के दूसरे छोटे छोटे काम अपना लिए, लेकिन काम वही अपनाए जो किससे रिलेटेड थे, नेचुरल प्रोडक्ट से। जैसे कुछ क्राफ्टमैन बन गए, पॉटरी बनाने लगा, मैट्स वगैरह बनाने लगे। तो जब उन्होंने पॉटरी मैट्स बनाई तो उसके लिए ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत हुई बाज़ार में बेचने के लिए, ठीक है बच्चों, ट्रांसपोर्ट की हुई, फिर आपस में बाइंग एंड सेलिंग स्टार्ट हुई, शॉप्स वगैरह, शॉपकीपर्स बनने लगे। तो इस तरह से हम देखें कि सबसे पहले प्राइमरी सेक्टर ने डेवलपमेंट में आगे बढ़े और उनके आगे बढ़ने से उनके साथ दूसरी एक्टिविटीज़, ट्रांसपोर्टेशन, बाइंग एंड सेलिंग आल्सो स्टार्टेड। लेकिन उसके बाद आफ्टर द बिगिनिंग ऑफ द डेवलपमेंट, उसके बाद जब डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया तो बच्चों सेकेंडरी सेक्टर थोड़ा सा आगे बढ़ने लगा। कैसे बढ़ने लगा आगे सेकेंडरी सेक्टर बच्चों? क्योंकि अब लोगों के पास पैसे बढ़ने लगे, पैसे बढ़ने के साथ साथ उनको दूसरी और चीज़ों की डिमांड भी बढ़ने लगी। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अब जो, क्योंकि डिमांड बढ़ने लगी तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो था वो थोड़ा ऊपर आने लगा, क्योंकि अब इंडस्ट्रीज़ बढ़ने लगी, मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा होने लगी और इंडस्ट्रीज़ में चीप चीज़ें मिलने लगी। उन चीज़ों को ख़रीदने के लिए लोगों की डिमांड बढ़ने लगी। अब जब लोगों की डिमांड बढ़ी बेटा तो इंडस्ट्रीज़ भी बढ़ी, ठीक है बच्चों। इंडस्ट्रीज़ बढ़ने से क्या हुआ, डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़ हुआ, यानी सेकेंडरी सेक्टर जो था प्राइमरी सेक्टर से आगे निकल गया इन द इम्पोर्टेंस में। फिर हम देखते हैं कि जैसे फिर जब वो कंट्री डेवलप्ड हो गया थर्ड स्टेज में, तो डेवलप्ड कंट्री हो गया, तो उसमें क्या था कि ये जो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर जैसे जैसे सेकेंडरी अब बढ़ने लगा तो सेकेंडरी सेक्टर में बहुत सारी चीज़ें मैन्युफैक्चर होने लगी। उनके लिए, बिजनेस के लिए बच्चों, ट्रेडिंग के लिए, ट्रांसपोर्टेशन की, कम्युनिकेशन की, इन सब चीज़ की ज़रूरत पड़ी। तो उसके लिए क्या हुआ कि अब सर्विसेज की ज़रूरत पड़ी। लोग टर्शरी सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगा और इस तरह से एम्प्लॉयमेंट बढ़ते बढ़ते प्रोडक्शन भी बढ़ने लगा, जिसकी वजह से देयर वॉज ए ड्रास्टिक चेंज इन द टर्शरी सेक्टर। अब टर्शरी सेक्टर भी बढ़ने लगा। तो एट प्रेजेंट चिल्ड्रन देयर इज़ ग्रोथ ऑफ टर्शरी सेक्टर इन आवर कंट्री। अब हम देखते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ टर्शरी सेक्टर, इम्पोर्टेंस ऑफ यानी टर्शरी सेक्टर की इम्पोर्टेंस कैसे बनी, बहुत बढ़ गई। और बच्चों ये बढ़ी कैसे? क्योंकि हिस्टोरिक चेंज आए, इम्पोर्टेंस बढ़ गई। और इम्पोर्टेंस बढ़ने के भी बहुत सारे रीजंस थे। इम्पोर्टेंस ऑफ द टर्शरी सेक्टर्स में रीजंस कौन कौन से रीजंस थे बच्चों? पहला रीज़न ये है कि बेसिक सर्विसेज की ज़रूरत पड़ने लगी। टीचिंग प्रोफेशन, ठीक है, और डॉक्टर के प्रोफेशन की ज़रूरत पड़ने लगी, मेडिकल की ज़रूरत पड़ने लगी और ट्रांसपोर्टेशन की, कम्युनिकेशन की, इन सब की ज़रूरत पड़ने लगी। बेसिक सर्विसेज की ज़रूरत पड़ने लगी, जिसकी वजह से टर्शरी सेक्टर की इम्पोर्टेंस बढ़ी। दूसरा रीज़न था कि इंडस्ट्रीज़ और एग्रीकल्चर बढ़ा। इंडस्ट्रीज़ और एग्रीकल्चर बढ़ने से इंडस्ट्रीज़ और एग्रीकल्चर में ट्रांसपोर्टेशन की वजह से सर्विसेज की ज़रूरत पड़ी, लोगों की डिमांड बढ़ी। लोगों की डिमांड बढ़ने से बच्चों क्या हुआ कि इस सेक्टर की, जो सेकेंडरी सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ गई, जिसको कंट्रोल करने के लिए ट्रेड, बिजनेस, कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ी। और इसी तरह से एक और रीज़न था कि इम्पोर्टेंस ऑफ टर्शरी सेक्टर क्यों बढ़ी? लोगों की इनकम, लेवल ऑफ इनकम इंक्रीज्ड। अब बच्चों लेवल ऑफ इनकम इंक्रीज होगा तो वो डिमांड करेंगे, ये चाहिए, वो चाहिए, ये डिमांड चाहिए, ये चीज़ें चाहिए। तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि डिमांड पूरी करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा होनी थी और उन मैन्युफैक्चरिंग थिंग्स को कंट्रोल करने के लिए टर्शरी सेक्टर की इम्पोर्टेंस बढ़ गई। और एक और रीज़न है बच्चों इम्पोर्टेंस ऑफ टर्शरी सेक्टर की, जो पहले जो कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ थी, जो सर्विसेज जो थी, जैसे आईटी सर्विसेज, कम्युनिकेशन और ये इस तरह की जो चीज़ें जो पहले नहीं थी वो सर्विसेज भी सामने
आ गई, और उन सर्विसेज के आने से ये इम्पोर्टेंस ऑफ टर्शरी सेक्टर और बढ़ गया, कम्युनिकेशन बढ़ा, आईटी सेक्टर बढ़ा। बच्चों अब आपको पता है कि ग्लोबलाइजेशन है, दिस इज़ द नाउ डेज इट इज़ द ग्लोबलाइजेशन एवरीवेयर, यानी ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कि वी आर ट्रेडिंग विद अदर कंट्रीज ऑल्सो, उसके लिए आईटी सेक्टर और कम्युनिकेशन की बहुत ज़रूरत थी। तो दीज वर द रीजन्स फॉर द इम्पोर्टेंस ऑफ द टर्शरी सेक्टर्स। नाउ वी कम our last topic, where most of the people work or employed। अब हमने तीनों सेक्टर्स का देख लिया। हमें देखने से ऐसा लगता है कि टर्शरी सेक्टर में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट है, लेकिन बेटा ऐसा नहीं। एट प्रेजेंट दिस इज़ नॉट लाइक दिस। मोर देन 50% ऑफ आवर पीपल आर still engaged in farming, in agriculture, that is, and less than 50% persons are employed in secondary and tertiary activities. But the children, that is why, because more than 50% people are working on the farm, so there is overburden on the agriculture. Because of the overburden, there is problem of underemployment, and you can say there is problem of disguised unemployment. What is the meaning of underemployment? People seems to be working, but actually they are not needed there. Same case with with the disguised unemployment. What does it mean? People are looking as if they are working, and they are working hard, but actually this is not like that. They suppose the 5 people are working in a farm, and the work is only for the 3 persons. If the 2 persons are taken away from them, there will be no effect on the production. This means 2 people are unemployed. Without them, work can be done. So we can say, children, this type of unemployment is known as disguised unemployment. That's all for the today, children. Okay? So other things we will discuss tomorrow. Bye bye. Take care. Stay home. Stay safe. Bye.